Good morning, dear students. Welcome back in the computer class once again. In the last video, we were discussing question number 2 and already we have completed part 1 and part 2, right? So second part mein we were discussing the break and continue definition along with one example for each of them. So now the C part, move on to the C part. Write a statement to show how finding the length, this one you can leave, this is related to the array because annual part, leave this one. Next question देखते हैं, name the Java keyword that indicates a method has no return type. That means a method has no return type. अगर आपको ये बताना है कि कोई भी फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा है, कोई भी फंक्शन इफ नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, सो विच डेटा टाइप विल यू यूज? Void. This is actually, this question belongs to again your annual syllabus, but I told you the answer for this because method you have studied already. Main method होता है ना, हम main बनाते हैं ना, main से पहले क्या लिखते हैं? Public static void main. Have you noticed? Void main. ठीक है ना, तो दैट मीन्स वॉट की मेन इज अ मेथड, मेन इज अ फंक्शन विच इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू, सो दैट इज द रीजन बिफोर मेन फंक्शन वी राइट द कीवर्ड वॉइड. सो सेम हियर इट इज आस्किंग कि इंडिकेट्स दैट अ मेथड हैज़ नो रिटर्न टाइप. अगर मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? वॉइड. नेक्स्ट, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ करंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट. आंसर इज दिस कीवर्ड. Write the proper answer, this keyword. Fine. Next one, what is an exception? I think this one is also your annual part syllabus. Exception. You can leave this question. Moving on to next question number 3. First part, write a Java statement to create an object MP4 of class digital. Now can you see here, what is the name of the class? Digital. And what is the name of the object? MP4. And what is the syntax to create the object of a class? पहले syntax discuss कर लेते हैं. सबसे पहले क्या लिखते हैं? First we write class name. After that object name equal new keyword, again class name along with parenthesis, that means round bracket. Got my point? Now look at here, question में which one is the name of the class? What is the name of the class in this question? part 1 में क्या question class का name क्या है? Digital. So सबसे पहले देखो same way में लिखना है, do not change anything. Digital का D is small ना, so write it as it is, digital. What is the name of the object in the question? MP4. Good. So here you will write MP4 is equal to new keyword is same, right here new in the same way. Then class का name again, what is the class name? Digital. Right here digital again. And then brackets. Got my point? Sometimes the questions will come, very easy questions will come and you can very easily score the marks. ठीक है, बहुत ही easy सा था. आपको क्या करना है? सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाना है. फाइन, डन. टेक द स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन समवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, state the values stored in the variable str1 and str2. State the values stored in the variables str1 and str2 के अंदर क्या values आएंगी हमें वो find out करनी है. Now see, first is string s1 is equal to good. Then string s2 is equal to world matters. ठीक है, that means two string variables we are taking s1 and s2, both is having some string in it. Next is string str1 is equal to, now read out this,
try to find out the meaning s2 dot substring. What is the use of substring? Substring is used to fetch or to give some part of the string. मतलब किसी भी string में से कुछ उसका सब पार्ट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सब स्ट्रिंग. नाउ हियर द इंडेक्स इज गिवन 5. सो सब स्ट्रिंग के अंदर हम एक इंडेक्स भी ले सकते हैं और दो इंडेक्स भी ले सकते हैं. ठीक है. नाउ डॉट रिप्लेस TN. अब ज़रा लेफ्ट साइड से एग्जीक्यूट करना शुरू करो. S2 में से सब स्ट्रिंग निकालनी है फ्रॉम द 5th पोजिशन. जब सब स्ट्रिंग निकल जाए तब आपको उस सब स्ट्रिंग में से लगाना है रिप्लेस फंक्शन. गॉट माई पॉइंट? रिप्लेस फंक्शन में T को रिप्लेस करना है N से. ये इसका मीनिंग है. जो भी आंसर आएगा स्टोर इनटू str1. देन str2 इज द अनदर वेरिएबल. बाय डूइंग s1 डॉट कॉनकैट str1 मीन्स इसको और इसको, गुड को और str1 को कॉनकैट. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ कॉनकैट? कॉनकैट इज यूज टू मर्ज टू स्ट्रिंग्स टुगेदर. दोनों को एडिशन करने का काम कौन करता है? जैसे सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग में लिखा है माई नेम इज सपोज आंचल एंड द सेकेंड स्ट्रिंग चौहान एंड आई वॉन्ट टू मेक इट, आई वॉन्ट टू कॉनकैट इट. सो व्हाट विल बी द कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग? इट विल बिकम आंचल चौहान. गॉट माई पॉइंट? सेम हेयर कॉनकैट क्या होता है? टू स्ट्रिंग्स को मर्ज कराने के लिए. नाउ सी हाउ इट विल वर्क. नोट डाउन द क्वेश्चन एवरीवन. Now I am going to make here, first is your S1. S1 stores good. I will show you the internal representation also for this. S2 is the another one. Wait. S2 I will make here because it is lengthy. Then some space. Fine. Now here you write the index. This is your S2 and what is there in S1? Like that it will store. Fine. Good word matters. Now here it is given string str1 is equal to s2 डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 5, यानी कि S2 में से सब स्ट्रिंग निकालो 5th पोजीशन से. नाउ विच इज़ द 5th पोजीशन? दिस वन. दिस इज़ योर 5th पोजीशन, यानी कि स्पेस से लेकर. ना सेकंड ये नहीं बताया हुआ है कि कहाँ तक लेके जाना है, मतलब अप टू विच लोकेशन यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द स्ट्रिंग. तो आप क्या करोगे? अगर नहीं होता तो लास्ट पोजीशन तक लेके जाते हैं. मतलब कौन सी पोजीशन तक? 12th. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? मैटर्स. कितना आ गया? मैटर्स. पूरी इतनी सब स्ट्रिंग 5th पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक अप टू हेयर यू विल फेच द स्ट्रिंग. नाउ इट विल गेट स्टोर. यहाँ पे ये टेम्परेरी क्रिएट हो गई मैटर्स. मैटर्स में रिप्लेस कर दो T को N से. मैटर्स में T को रिप्लेस कर दो N से, मतलब T को वेर एवर T इज़ अकरिंग इन दिस स्ट्रिंग रिप्लेस इट विद N. हो गया. नाउ फाइनल जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसको str1 में स्टोर कर दो. तो str1 के अंदर कितना आ जाएगा? str1 विल स्टोर मैनर्स.
सी इट विल नॉट स्टोर द कंप्लीट स्ट्रिंग, क्योंकि हम सब स्ट्रिंग निकाल चुके हैं, हम इतना पार्ट ऑलरेडी वी हैव फेच्ड आउट, हम निकाल चुके इतना इतना, तो इट विल नॉट स्टोर वर्ल्ड, वर्ल्ड अलग हो गया है, मैटर्स अलग हो गया है, ठीक है। तो str1 के अंदर कितना आ जाएगा, मैनर्स। नाउ स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू s1 डॉट कॉन्कैट str1, s1 को कॉन्कैट कर दो str1 से। अब s1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, गुड, और कॉन्कैट करना है str1 के साथ, str1 के अंदर कितना है, मैनर्स, और मैनर्स किसके साथ है, स्पेस के साथ है। रिमेंबर ना, फिफ्थ पोजीशन से एक्सट्रैक्ट किया है, फिफ्थ पोजीशन पे व्हाट इज़ देयर इन S2 में फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, स्पेस है ना, तो यानी कि गुड के और मैनर्स के बीच में भी क्या आएगा, स्पेस। मैनर्स और उसके बीच में अगर स्पेस नहीं लगाओगे और आउटपुट विल बी टर्म्ड एज इनकरेक्ट वन, फाइन, एंड दैट विल गेट स्टोर इनटू योर str2। सो क्वेश्चन था आपका कि फाइंड आउट द वैल्यू इन str1 एंड str2। सो str1 के अंदर कितना आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा है, जस्ट लिटिल बिट ऑफ स्पेस आई लेफ्ट इट हियर, दैट मीन्स एक स्पेस के साथ मैनर्स आ रहा है, लेकिन एग्जाम में यू नीड नॉट टू राइट अंडरस्कोर साइन टू शो द स्पेस, आप सिंपल लिखोगे मैनर्स, ठीक है। उसके बाद में str2 के अंदर आंसर विल बी व्हाट, योर गुड मैनर्स। क्लियर है? टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस और नोट इट डाउन ऑन द नोटबुक। Done. Next, what does a class encapsulate? What does a class encapsulate? क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर होते हैं उसके डेटा मेंबर्स, राइट द आंसर, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। Data members and member functions. Now another name of data members is your variables, either instance or static. Member functions को हम बोल देते हैं methods. Fine, write the answer. Over. Next, rewrite the following program segment using if-else statement. Rewrite the following program segment using if-else. It means ये जो प्रोग्राम गिवन है, स्टेटमेंट सॉरी गिवन है, दैट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू if-else. Now this is given in the form of your ternary operator with the help of ternary operator. टर्नरी ऑपरेटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चला मुझे कि टर्नरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क एंड colon. Wherever in the statement if the question mark along with colon sign is given, that means it is a ternary operator, also known as conditional operator. The another name of ternary is your conditional operator. Fine, you can note this one also, those who don't know. Then next is here com is equal to if sale is greater than 15,000 then your com is equal to this, otherwise this. इसका मतलब क्या होता है, this is your condition. Now condition can be true or condition can be false. If condition is true, so this part will get evaluated, this part, if the condition will be true, and if the condition will be false, then this part will get evaluated. And whatever answer will be, चाहे आंसर ये हो चाहे आंसर ये हो, दोनों ही किसके अंदर जाएंगे, कॉम के अंदर. So what is the use of this? This is used to store the result. अब इसको इफ़ और एल्स में बनाना है, तो इफ़ में हम क्या लिखते हैं, इफ़ के साथ क्या लगाते हो, कंडीशन लगाते हैं ना. तो इस ज़रा इफ़ लिखिए आप, राइट नाउ इफ़. नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन, this one,
इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, सो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर कंडीशन ट्रू होगी सो विच एक्सप्रेशन विल गेट इवैल्यूएटेड, सेल into 5/100. So write here sale into 5/100, and whatever will be the answer that will get passed into your com. Got it? Else otherwise क्या होगा, otherwise com is equal to how much, 0, this much. दैट मीन्स यू शुड ओनली नो द पैटर्न, नथिंग एल्स. अगर आपको इफ एल्स का पैटर्न पता है कि क्या कैसे आप बनाते हो, कंडीशनल कैसे यूज़ करते हैं, तो सी देर इज़ नथिंग टू लर्न. मतलब कुछ भी याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आपको क्या करना था, यू ओनली नीड टू परफॉर्म द कन्वर्जन प्रोसेस है. इजंट इट? ठीक है. सो वी आर गोइंग टू लीव हेयर ओनली. द नेक्स्ट क्वेश्चन EFGH part I J, so many parts are there, see. ठीक है, all these parts we will do in the next class. So for today it's enough. That's all for today. Thank you.